क्रिमिनल सारे। बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 23 अक्टूबर 2023। समय गया है 061157 PM। Aisha Malik, she's from Pakistan and she's on a seat of a judge. I don't know where, Supreme Court of Pakistan or a High Court. She's someone quoted her with a photograph. Few words for brave woman. अच्छा मैंने लिख दिया Aisha Malik is a 90 trillion loan defaulter and she is under arrest in Interpol Red Corner notice. now suddenly some of the judges from the Supreme Court of India and some of them from the Pakistan and from other nation also wants to say, when I said ki, well, you already you are a loan defaulter, how it could be possible you can write it down any decision from on that honorable chair? Now their argument is, why should not we आजकल हालात पता है क्या है? भारत पाकिस्तान के अंदर बंदा है, देखो लोन डिफॉल्टर है, लोन डिफॉल्टर क्रिमिनल होता है और 90 ट्रिलियन का लोन डिफॉल्टर है। ठीक है, थैंक यू। कोकोनट 90 ट्रिलियन का लोन डिफॉल्टर है। और देखो हालात क्या है, इसके बाद भी द आर्गुमेंट फ्रॉम द जजेस इज अ वेरी शेमफुल argument is placed by the Aisha Malik and the Ramanna from the Supreme Court, ex-Supreme Court judge, Supreme Court judge, SCJ. It's a very shameful argument that I'm very soon. When these all judges are loan defaulters of 90 trillions, I'm naming them. And they are putting an argument. They are valid to be on the chair of judges while they are 90 trillions loan defaulter of a private company, and they are using their I-card and powers to pressurize those companies and their employees for not to recover the money. They are using the bouncers and the criminals, and they are not allow those companies to recover the money they loaned themselves. This is the situation. The subject is a judges from the honorable chair, while they are loan defaulters, they are announcing themselves they are not guilty. How it could be possible? How it could be possible they are not guilty? How it could be possible? Now, what is the situation inside the society here in India? A man in a uniform, a police personnel from a Delhi police, he is a 90 trillion loan defaulter and saying he is a police. Then who is the criminal? What is the definition of criminal? What is the definition of criminal? A man is who himself is already a 90 trillion loan defaulter and using the central government's I-card to pressurize
those private companies and their owner, and not allowed to do the recovery, and saying this is the way to investigate a company. And where is the money? And they deposited those money inside the IS vault and enjoying the security of ISIS, Islamic State of Iraq and Syria, who is already a banned organization in the entire world. A sale tax officers are raiding while they are retired, using their I-card while they are loan defaulters, and they are pressurizing shopkeepers and other men who are sitting and visiting market to pay the sale tax on time. And they are saying they are catching criminals of system who are not paying sale tax. But they are not criminals. They are saying they are not guilty. It's a very shameful. It's a very shameful. A very, very famous case from the Bhagalpur. A retired sale tax officer is using his power while he loaned himself a company named Aman, and his wife loaned herself with a son from Aman. All three of them are loan defaulter, and they are using sale tax I-card and pressurizing Aman company and Haqqani to let them allow to check sale tax registers. Now who is criminal? A man is from a CBI office, he is a director. He loaned himself 90 trillions Indian rupees, and he is a defaulter and using his I-card to pressurize, and he is using his I-card to pressurize to raid that company and the central office of Aman and Haqqani. And same is the story of so many politicians, while the Indian government's Prime Minister named in the media, Narendra Modi, is using his Prime Minister's chair's power to pressurize the company to surrender the vault. Why? He is a loan defaulter. I would like to ask to ICJ, International Criminal Court of Justice, please deliver the justice. It's really a very big case. How it could be a possible a Prime Minister of India, he loaned himself from the Aman 90 trillions and he is a defaulter, and he deposited, it's an Interpol investigation, he deposited his money in ISIS inside the Pakistan below the Minar-e-Pakistan. Why? How it could be possible? Everyone wants to check the company Aman, while they know very well a man is now owner of Aman and Haqqani is from India. What is wrong? मतलब एक क्रिमिनल पुलिस वाला वर्दी पहन कर जांच करने जा रहा, लोन डिफॉल्टर है, वो पुलिस वाला है, आई कार्ड दिखा रहा है, वो सीबीआई है, वो भारत सरकार है, लोन डिफॉल्टर है, वो गिल्टी नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है. How could it be possible? Where is justice? Where are the common sense and the IQ level? Are you mad? Or something is wrong with you? A loan defaulter is delivering a speech from the podium?
Why? Because it's a secret. What is the meaning of secret? Criminals, they are criminals. Criminals has no right in any situation to keep the secret. If they are keeping these thing as a secret, you know what is mean? It's a proven fact they are criminal. It's a proven fact. A man is from the Central Vigilance. Is a loan defaulter. A TT inside the train. Checking ticket. While he is a loan defaulter. Amazing. A criminals are running system means it's a clear thing. I like to please register my statement inside the court in ICJ. Sir, it's a clear evidence that the criminals are running system. How could it possible the criminal system can be survived? I don't know. A HPG guard securing Prime Minister while he is a loan defaulter. Loan defaulter. 90 trillions. मतलब ये है कि वो दिखाएगा वो लोन डिफॉल्टर वो क्रिमिनल है, मैं सीबीआई हूँ, मैं सीबीआई, मैं कोर्ट से हूँ, मैं सेंट्रल विजिलेंस, मैं आईबी, मैं रॉ, ऐसे करे ऐसे रॉ, मैं पता है क्या दिखाऊंगा ऐसे निकाल के, मैं चूतिया हूँ, नहीं मैं चूतिया हूँ, वो तो वो तो यही दिखाएगा ना, कागज पे लिख के ना कार्ड पे चूतिए हैं हम, उस पुलिस वाले को दिखाओ जो यहाँ घूमता रहता है उसको ऐसे निकाल, हम चूतिए हैं, उसको दिखाओ, उसको आईना दिखाओ, ऐसे ऐसे ऑफिसर्स को आईना दिखाओ, कागज पे लिख लो, एक कार्ड पे विजिटिंग कार्ड चाहिए, Joe Biden is asking my visiting card of a company. I definitely have to show him. I sent him a message that 4 crore loan defaulters are inside the America, and the point is Narendra Damodar Das Modi is not my representative. I'm Aman Khan's owner. Now he is asking my visiting card. पता है क्या दिखाना है? एक कार्ड पे लिखना चूतिया लिख देता हूँ उस पे. I'm चूतिया. भोसड़ी का पागल समझ रहेगा बाइडन. ऐसे बात करता हूँ मैं तेरे से. मतलब वो कह रहा है एक पुलिस वाला, मैंने उसको बोला ऐसे कागज पे काम से चूतिया है ना, तू पुलिस वाला है, तू सीबीआई वाला है, तू सेल टैक्स वाला है, तू जाइए यहाँ से, तू इनकम टैक्स वाला है, हम चूतिए हैं. वाह भाई वाह, तू एसपीजी है और हम चूतिए हैं. हमारे पास तो कोई काम है नहीं ना. वो बहन जज वहां बैठा हुआ, मैं जज हूं और हम चूतिए हैं. 90 लाख करोड़ रुपए लेके खा गए यार. क्रिमिनल्स एक हो चाहे 1 करोड़ हो या 10 करोड़ हो या 100 करोड़ हो, क्रिमिनल्स तो क्रिमिनल है ना. यार तादाद की वजह से डेफिनेशन बदल जाएगी लोन डिफॉल्टर्स की. अजीब बात है ये. जो यहाँ खड़ा होकर बाइक पे घूम रहा है, पुलिस वाला बन रहा है, तू मैं नहीं जानता तू अमान का लोन डिफॉल्टर है, हैं? तेरे को क्या आई कार्ड दिखाना है? कागज है, हम चूती हैं. तो तू पुलिस वाला है, तो हम तो चूती हैं ना. फिर क्यों? तू भारत सरकार है, हम तो चूती हैं. फिर अबे रिटायर्ड हो गया तो कुछ भी हो गया, भोसड़ी का तू लोन डिफॉल्टर है बहन के लिंड.
लोन डिफॉल्टर दिमाग से सारे का झापड़ दूंगा बहन के लड़े में खींच के। बढ़ाओ तेरा भारत सरकार अभी कोई तरीका तुम्हारा? मतलब वो क्रिमिनल नहीं है। मेरे को जाते हुए तुम 4 बात सुना रहे हो, मैंने कुछ नहीं कहा है, और तुम लोन डिफॉल्टर हो और हम बेवकूफ हैं। मैंने इसको बोला तो मेरे सामने मत आया कर, मेरी हंसी नहीं रुकती। इतने शर्म की बात है, इतने शर्म की बात है। मरियम नवाज शरीफ ईबिक्स कैश के डॉक्यूमेंट में फोटोग्राफर्स की मैंने सबूत दिया है, सबूत। मरियम नवाज शरीफ एक प्राइवेट कंपनी में ईबिक्स कैश में वो अपने एक नाम से काम कर रही है, लोन डिफॉल्टर है यार। कोई बात नहीं, किसी ने पेमेंट कर दी, और मैं जानता हूं उसके बॉयफ्रेंड ने पेमेंट कर दी भाई, बड़ी बात है, सल्यूट किया तुझे। 900 टन गोल्ड पे किया है, 900 टन, वो भी बकेट खुलने में। बकेट खुलती है ना बेड में। मरियम नवाज शरीफ लोन पे करना है इसका, खोल दे बकेट। एक चांस देते हैं, और उसमें भी जो है हमारे को नहीं भाई साहब 3 किलो गोल्ड देना पड़ जाएगा बकेट खोलने का। मान ले बकेट खोलने पे निकल गया किसी का 10,000 टन गोल्ड, नहीं भाई हमने नहीं देना भाई, 3 किलो गोल्ड दे दे। मरियम नवाज शरीफ की बकेट खोली, 900 टन गोल्ड निकल गया, उसके बॉयफ्रेंड ने दे दिया। जाओ, सफदरवान ने नहीं दिया, सफदरवान ने नहीं दिया, वो तो भगभगा गया उसके बॉयफ्रेंड ने। वो मरियम नवाज शरीफ है, इसका मतलब कि वो लोन डिफॉल्टर नहीं है। एक बार कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्टर की लिस्ट में चला जाए, डिफॉल्टर होने के बाद, वारंट निकलने के बाद, रेड कॉर्नर नोटिस का वारंट निकलने के बाद पेमेंट आई है। मतलब राहुल गांधी है तो वो क्रिमिनल नहीं है। नहीं, हम तो कागज पे ना, आई कार्ड पे, एक विजिटिंग कार्ड पे ना, जेब में, जिसने लोन नहीं लिया ना, पुलिस वाला हो, हाँ, वो लोन लेकर के ना महरौली थाने में एसएचओ बैठा हुआ है, महरौली सतबड़ी में बैठा, लोन डिफॉल्टर है। हाँ, तुम अपने एक विजिटिंग कार्ड पे ना लिख लो, चूतिए हम। हाँ, काम क्या करते हो? चूतिया बनती। हम तो चूतिए हैं ना, और तो हमारे पास कोई काम नहीं है ना। बड़ा रौब से घूम रहा है जाना यार, वर्दी तय कर, तू जा यार, जा। भारत सरकार की रेड में सुन ले भैया, एक मिनट सुन ले यार, सुन ले भाई, सुन ले, नहीं सुन ले भाई, सुन ले, बहुत हो गया, बहुत हो गई ड्रामेबाजी, बहुत हो गई यार तुम्हारी ड्रामेबाजी। कोई जासूस हो, जासूस भी सरकारी बंदा होता है, जासूस भी सरकारी बंदा होता है, स्पाई सरकारी होते हैं, नौकरी होती है, चाहे किसी देश में हो। अब लोन डिफॉल्टर है, चूतिए, नहीं तू तो चूतिए तो हमें। मैं आयशा मलिक की सपोर्ट में उतरने वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज रमन्ना के जवाब पे ये मैंने वीडियो बनाई है, रमन्ना के जवाब पे, कि लोन लेके हम यार, लोन लेके पढ़, मना नहीं किया, पे तो कर दे। जज बन गया और आते के साथ लोन डिफॉल्टर हो गया। मैंने कहा पता क्या लिखा हुआ उसमें जजमेंट में, कि अगर इसने मुझे लोन डिफॉल्टर बोल दिया ना तो इसको अरेस्ट कर लेना। ये आयशा मलिक के वर्डिंग है, पाकिस्तान में जज है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा मेरे अरेस्ट वारंट निकालेगा, लोन डिफॉल्टर है यार। हम चूती हैं क्या बे? दिखाएं तेरे को लिख के, हम तो चूती हैं भाई। 100% अमान का लोन डिफॉल्टर है। मैं नहीं पहचानता मेरी कंपनी से किसने लोन लिया है, किसने नहीं लिया। हम नहीं पहचानते क्या? मतलब मैं पैसा देके भूल जाऊं, डिस्क्लेमर लगा इसलिए वीडियो नहीं है। अबे मैंने बाइडेन को ट्वीट करके भेजा है।
क्या वैलिड पूछ रहा है बे? क्या वैलिड पूछ रहा है बाइडन? क्या वैलिड पूछ रहा है तू? क्या वैलिड पूछ रहा है? नहीं नहीं यार, जो शांत रह रहा है तो जो शांत रह रहा है वो रह रहा है, उसको हम नहीं बोलते. No, whomsoever is a silent and enjoying alone, we don't have any problem. But some of the person is showing the power to us. मुझे पहचानता नहीं है. विजिटिंग कार्ड पहचान है तेरे को? दिख नहीं रहा वो कार्ड क्या है? अटैच नहीं करके भेजा? मैं बाइडन से पूछ रहा हूँ, अटैच नहीं देखा क्या है? हैं? वही है विजिटिंग कार्ड. ऐसे ही होता है मेरा विजिटिंग कार्ड. तुझे क्या पता? तुझे क्या पता? बताओ यार. Yeah, so many persons are loaned themselves, but they are working silently. They don't have any problem. But some of the persons are using their police I-card, their raiding powers, like National Security Guard of India, in the Rashtrapati Bhavan in the Prime Minister office, and some of the persons is using their press I-card and their stardom to pressurize me. That's why I'm creating these videos. Very simple. Very simple. Very simple. मतलब एक लोन डिफॉल्टर पैसा लेके भाग गया है जो वो थाने का एसएचओ और पुलिस कमिश्नर बनेगा, तो उसके बावजूद भी मोदी गवर्नमेंट में अपराध नहीं बढ़ा है? हैं? अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा. नहीं, यहां से नहीं है. अंधों में काना राजा, इस्लामिक वर्ल्ड, शुक्राचार्य की विद्या. कहना क्या चाहते हो? नहीं, कहना क्या चाहते हो? बताओ यार. तू हितेश मंडल को पहचानता नहीं पहचानता? मैं बाइडन से पूछ रहा हूं. हैं? हितेश मंडल को पहचानता नहीं पहचानता? यार अटैचमेंट भेज दिया मैंने उसको यार, ये रहा विजिटिंग कार्ड. विजिटिंग कार्ड का मतलब समझता है? मैं तेरे को विजिट करने आ रहा हूं, चूतिए के पट्टे. विजिटिंग विजिटिंग विजिट समझता है चूतिए के पट्टे? जॉय बाइडन, ज्यादा अंग्रेजी आ रही है तुझे? हैं? विजिटिंग कार्ड मैं कब विजिट करने आया हूँ तेरे को? जो विजिटिंग का कार्ड मांग रहा, तू यूएस प्रेसिडेंट है? जॉय बाइडन तो यूएस प्रेसिडेंट है. या बहन के लोड़े पागल भोसड़ी के अनपढ़ गवार साले. भोसड़ी के तो पहले सब्जी वब्जी बेचता था क्या रोड पे? विजिटिंग कार्ड तब भेजा जाता है जब मैं तेरे को विजिट करने आऊं. मैं तेरे को विजिट करने आऊं, तेरे को मैसेज भेजा है गांडू. बहन का लोड़ा अनपढ़ गवार भागे चूसे की यूएस प्रेसिडेंट है तू. It's very hard to believe that you are a US president. When I'm sending only a message and he's asking a visiting card, who is he? This is the way of visiting? You are asking me visiting card? Huh?
Am I there to visit you? Or is I no? Or I send it any message to I'm visiting you? Why are you asking visiting card? Are you a Joe Biden from United States of America's president? Post? अब बहन करोड़ पर कबाड़ा भोसड़ी का तू ही पढ़ा लिखा है वैज भोसड़ी का अमेरिकी प्रेसिडेंट हम चूती है हम पढ़े लिखे नहीं है हम पढ़े लिखे नहीं है अबे गांडुओं अगर मैं तुम्हारे ऑफिस घूमने आया हूं ना तो विजिटिंग कार्ड चाहिए कि सर ये विजिटिंग कार्ड है आई एम हियर टू विजिट यू विजिट का मतलब विजिट जानता है घूमना होता है विजिट करना ऑक्सफोर्ड अमेरिका में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका में अब प्रिंसटन भी ना Americans are sounding they are having a world's best universities बेवसड़ी वालों ऑक्सफोर्ड प्रिंसटन समझाओ उस बैंड के लड़के को मैं मिलने आएगा तेरे से तो विजिटिंग कार्ड क्यों मांग रहा है पागल है क्या तू यूएस प्रेसिडेंट है तू यूएस प्रेसिडेंट है तू भोसड़ी के मैसेज भेजा आईडी दे दिया जब बाकी लोड़े ओरिजिनल आईडी भेजी पागल Mr. Joe Biden, the President of United States of America, is asking visiting card from me. Ever I send it a message to you, I'm in mood to visit you? And why are you asking visiting card? Mr. Biden, you are also a 90 trillion student defaulter. I'm just reminding you, it's a reminder. And from the valid source. Now it's a duty of a CIA and the Pentagon and the US Army to identify that the sender of this message, yes, the sender who is sending this message is original. So then who is going to take a responsibility of this? Who? What is this? What is this? What is this? ओ यार वो अमान और अक्कानी में अरमान यार लोन देने से पहले अगले नेक्स्ट टाइम से सोच लियो चेक कर लियो यार अरमान का ओनर हूँ विजिटिंग कार्ड मांग रहा हूँ मेरे से मैं तेरे को विजिट करने आ रहा हूँ मैं तुझे ये लगता है जॉय बाइडेन में 90 ट्रिलियन इंडियन रुपीस के लिए तेरे से मिलने आऊंगा हैं तुझे ये लग रहा है तू जानता मैं कितना पैसे वाला आदमी हूँ हैं ये लग रहा है मैं किसी का रास्ता रोक के बोलूंगा कि तूने मेरे 90 लाख करोड़ रुपए देने हैं Now Mr. Biden is thinking I just sent you a message because yes what I said the point is read the message Mr. President read the message what I written in it the point is Narendra Modi is not my representative is that clear and this is the message for entire world's different nations president Narendra Modi is not my representative in any way in any situation and none from other from the same profile is that clear बस 90 ट्रिलियन मांगने आऊंगा इससे जॉय बाइडेन अब एक दिन में पता नहीं
100, 200, 300 बता रही कितने लोगों को 90 ट्रिलियन का मैं लोन देता रहता, मैं मांगने आऊंगा तेरे से। अच्छा मैं पॉइंट क्या लिखा है वो पढ़, सब्जेक्ट ये है, पैसा नहीं। समझा? समझा या नहीं समझा? समझा या नहीं समझा? मैं 90 लाख करोड़ रुपए के लिए तेरे से बात नहीं कर रहा हूं। मजा आ रहा है सुनने में? डिफॉल्टर ना और दे दे। कितना बड़ा आदमी है रईसी, कितना बड़ा आदमी है रईसी। पॉइंट इज दिस, money is not a subject for me. Point is this, now you are defaulters. Raisi and the King Salman, it's a default, it's defaulted. मान लो तुझे लग रहा है कि मैं किंग सलमान के पास अपने अपने पैसे के लिए जाऊंगा मिलने, या उसके साथ कॉफी बैठ के पीऊंगा, डिस्कस करूंगा मेरा पैसा कब दे रहे हो। दिमाग काम करता नहीं करता तुम लोगों का। मैं सिस्टम में नियम पे काम करता हूं, पैसा मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, कुछ भी नहीं। तुमने अगर नियम तोड़े गए काम से तुम, समझे? माय मैसेज टू मिस्टर प्रेसिडेंट Joe Biden, United States of America, is very clear. Very clear. And that is Mr. Narendra Modi. I tagged him. Is not my representative. Is that clear? That's it. मुझे तो मैंने चुन चुन के बताता हूँ ये डिफॉल्टर है, इसको बुलाई तरीके में तुम्हारी बेइज्जती करने में इतना मजा आ रहा है ना। मैं और कुछ नहीं कर रहा। ये मेरी टीम के ना फट्टे समझ नहीं पा रहे अबे लल्ला। मुझे इनकी बेइज्जती करने में जो मजा आता है ना, कसम और कोई मजा नहीं आता। ऐसा हमें छोड़ना यार, ले लेंगे। रईसी है, कितना बड़ा नाम है तेरा? निक नाम के साथ इब्राहिम रईसी इज अ लोन डिफॉल्टर। समझा? दिस द गेम। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ एक्स जज Ramana is a loan defaulter. Prime Minister of India Narendra Modi is a loan defaulter. This is the subject to enjoy and to enjoy the party. The game is not a पैसा खा के जाने देना, कोई परवाह नहीं है। बहुत चौड़ा होके आया था इंडिया में मोदी, बहुत चौड़ा होके आया था, समझा? बहुत चौड़ा होके। हटाइए अपने नाम के साथ से डिफॉल्टर। मैं भी तो देखो कितना पैसे वाला है, मैं भी तो देखो बहुत बड़ा नाम है तेरा। सुनो, नरों में इंद्र नरों में इंद्र नरेंद्र मोदी इज अ लोन डिफॉल्टर। दिस इज द न्यूज। पैसा आ जाएगा, चिंता नहीं है। नेट नुकसान होता ही नहीं, कमा लूंगा यार, मुझे कमाने की कोई चिंता नहीं होती है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू इज अ लोन डिफॉल्टर। तो हम समझ नहीं पाए अपने ओनर को। सकल देखे बे, क्या लोन डिफॉल्टर। पैसा लेके भाग गए कंपनी का, ऐसे बात पे ऐसे छुप रहे। सब्जेक्ट ये है, कितना भी बड़ा नाम होगा ना, चमक रहा है ना, लोन डिफॉल्टर। समझा मुझे?
United States of America's President Joe Biden is loan defaulter. तेरा प्रेसिडेंट डिफॉल्टर है. जरा भाई, अमिताभ बच्चन नाम है तेरा. You are a loan defaulter. Get out. बस इतने से कहने में मजा आता है. ठीक है. ये वो लोग हैं जो मौका लगने पे तुम्हें नहीं बख्शते, तो तुम भी मत बख्शो. नियम है. तो सीधा सीधा बोलो. मैं कपड़े कहां से खरीदता हूं, खाना कैसे खाता हूं, बाजार में कैसे जाता हूं, बड़े आराम से देख के रिपोर्ट बनाई गई. समझा? बड़ा मजा आता है. उससे भी ज्यादा मजा पता है क्या आता है? प्यार से ना पूछते हैं मेरे बंदे जाके, मकान तेरा है? मकान तेरा है? अच्छा जी, चल फिर. ये दूसरी चीज है. राष्ट्रपति तुम्हारा पूछ, राष्ट्रपति चलने दे. और क्या? दिस इज द गेम. समझ में आई? मानो या मत मानो, छोड़ दे आज. वही वाला सुदर्शन चक्र इस पे उठा दे थक गया.